Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। Father, we come in Jesus' name पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। as we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, Help us. हमारी मदद करो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Speak with us. हमारे साथ बात करो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Open our ear. हमारे कान खोलो। We open our heart हम हमारा हृदय खोलते हैं to say Amen with your word. आपके वचन में आमीन बोलने के लिए। We want your revelation. हम आपका ज्ञान चाहते हैं। We want that you make us understand. हम चाहते हैं कि आप हमें समझाओ। Help us, we are weak. हमें हमारी मदद करो, हम कमजोर है। Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो। Bless each one who are here. जो यहाँ है हर एक को आशीष दो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today we are going to study about prodigal son, आज हम फिजूल खर्ची बेटे के बारे में अभ्यास करेंगे। who spent all his wealth and health and property. जिसने अपना सारा आरोग्य, अपनी सारी संपत्ति और धन सब गवा दिया, लुटा दिया। And he returned back to his father. और फिर वह अपने पिता के पास वापस आया। And he said, I have sinned against you, father. और उसने कहा कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। And father had kissed him and welcomed him. और पिता ने उसे चूमा और उसका स्वागत किया। That is the story we know. यह कहानी हम जानते हैं। Jesus Christ himself said this story. यीशु मसीह ने खुद यह कहानी बताई। What it means? उसका अर्थ क्या है? What Jesus want to say about this prodigal son? ये उड़ाव बेटे के बारे में यीशु मसीह क्या कहना चाहते Who हैं? is that elder brother और वह बड़ा भाई कौन है? who was angry seeing the prodigal brother coming back? जो अपने छोटे भाई को वापस आता हुआ देखकर गुस्से में हुआ था। He didn't like that brother came back. तो छोटा भाई वापस आया, वह बड़े भाई को पसंद नहीं आया और उसने नफरत की। But father said, all thing is yours. लेकिन पिता ने उसे कहा कि सारी बातें तेरी है। And you should be pleased seeing your small brother come back. और तेरा छोटा भाई जब वापस आया तो तुझे खुश होना चाहिए So था। who is this father? तो यह पिता कौन है? And who is that son? और वह बेटा कौन है? In Luke 15 chapter verse 11. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 11वां I वचन। want you all open your Bible. मैं चाहता हूँ कि आप सब आपका बाइबल खोले। Jesus continued his talking. He said, a certain man had two sons. फिर यीशु ने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। And the younger of them said to his father, Father, give me my portion. उनमें से छोटे वाले ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। And this father, he divided to them, the elder and this younger, he divided them his living. और उसने उनको, पिता ने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति बांट दी। The father divided the property between them. पिता ने संपत्ति दोनों के बीच में बांट दी। Verse 13. 13वां वचन। And few days later, this younger son who had the property, he went journey to a distant country. और कुछ दिनों बाद ये छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति बटोर कर दूर देश में चला गया। He gathered all his property that father has given him. उसे पिता ने जो संपत्ति दी थी वह सब उसने बटोरा। And he decided, I am going to leave my father's house. और उसने निर्णय लिया कि मेरे पिता का घर छोड़कर जाऊंगा। And there he wasted his estate livingly prodigally. और उसने वहां उसका सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। Verse 14. 14वां वचन। After he had spent all he had, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, and so famine swept through that country. There was famine in that country. तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। And he began to be in need. और वह कंगाल हो गया। Verse 15. 15वां वचन। And he went for a job. और वह नौकरी के लिए निकला। He went and joined himself to a citizen of that country. और वह छोटा बेटा उस देश के निवासियों में से एक के पास गया। And he sent him into
the field. That master sent him in the field to feed swine. और मालिक ने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। He got a job उसे काम मिला, feeding pig, swan. सुअर को चराने की नौकरी मिली। Verse 16. 16वां वचन, He even longed that he was very hungry. वहां पर वह भूखा हुआ और वह चाहता था। He even longed to satisfy his hunger with the bean pods on which the pigs were feeding. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे वह अपना पेट भरे। He was so much hungry that he thought that after doing my job I will get salary, but what about today? वह इतना भूखा था तो वह सोचता था कि नौकरी के बाद मुझे पैसा तो मिलेगा, लेकिन आज के बारे में क्या। And people didn't give him anything. और लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया। Verse 17. 17वां वचन, Finally he came to his senses और तब वह अपने आप में आया and said, और कहा, my father have many hired servants and they have plenty of food there. कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, But here I am starving to death. लेकिन यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ, I am dying with hunger. मैं भूख से मर रहा हूँ यहाँ। Verse 18. 18वां वचन, And so he took a decision. इसलिए उसने निर्णय लिया, I will get up and go back to my father's house. मैं अब उठकर मेरे पिता के घर वापस जाऊंगा And I will meet my father and say, I have sinned against you, my father. और मैं मेरे पिता से मिलकर कहूंगा कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप And किया है also I have sinned against heaven. और मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है। I left you and I went away. मैंने तुझे छोड़कर मैं चला गया। I would not love to obey, be in your command, in your obedience. तेरी आज्ञा पालन में रहना मैंने पसंद नहीं किया And I have been run there. और मेरा वहां नाश हुआ। Verse 19. 19वां वचन, He said, I will say to my father, please accept me as your servant if you don't accept me as your son. उसने कहा कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। He said, I am not good enough to be called your son anymore. उसने कहा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य अब नहीं रहा, Please accept me as your servant and give me place in your house. मुझे अब तेरा मजदूर, तेरा सेवक बना समझकर मेरा स्वीकार कर ले और तेरे घर में जगह दे। So this son he decided to return back to his own house. तो यह बेटे ने निर्णय लिया अपने घर में वापस आने का। Verse 20. 20वां वचन, And what he decided, he did it. और उसने जो निर्णय लिया वो उसने किया भी। He got up वह उठा and went to his father. और अपने पिता के पास चला। While he was still in a distance, father saw him. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा And that father was filled with compassion seeing this son. और इस बेटे को देखकर उस पिता को तरस आया। He saw the son who went out with the property came empty. उसने बेटे को देखा कि जो संपत्ति लेकर गया था वह खाली होकर आया है। And his father saw him and he was filled with compassion. और उसके पिता ने उसे देखा और उसको दया आई। And the father ran to meet the son. और पिता उसे मिलने के लिए दौड़ा And he embraced him और उसे गले लगाया and kissed him. और बहुत चूमा। And the son said, Father, I have sinned against you. और पुत्र ने कहा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप I किया have है also sinned against heaven. और मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया And है I am not worthy to be called your own son. और तेरा पुत्र कहलाने के योग्य मैं नहीं रहा। 22. 22वां But the वचन, father said to his servant, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, Father called the servant and said, पिता ने दासों को बुलाया और कहा, Quickly bring the best robe, best cloth, and put it on this son. फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ And also put ring in his finger and sandal to his feet. और उसके हाथों में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ। And also bring the fatted calf and kill it and let us celebrate and have feast. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। For my this son who was dead and I'm seeing him still alive. क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था
फिर जी गया है। I never thought he will return. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वापस He आएगा। was totally dead. वह पूरी रीति से मर चुका But था, I see him and I am happy. लेकिन अब मैं उसे देखता हूँ और मैं खुश हूँ। He was dead, now he is living. वह मरा हुआ था, अब वह जीवित है। Again I found him. He was lost. वह खो गया था, फिर से वह मुझे मिला Let है। us celebrate. आइए आनंद करें। And they celebrated. और उन्होंने उत्सव मनाया, They had a great feast. उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया। Verse 25. 25वां वचन। While this thing was happening, ये सारा उत्सव हो रहा था, the elder son came. तब बड़ा पुत्र आया। He came from the field. वह खेत में से आया On his way, he heard music. और आते हुए उसने संगीत सुना Also, he heard people dancing. और लोगों के नाच का आवाज भी उसने सुना। And he came to home. और वह घर आया। And he called one servant and said, "What is going on?" उसने एक दास को बुलाया और पूछा कि क्या हो रहा है। Verse 27. 27वां वचन। The servant told, "Your brother is come. वह सेवदास ने कहा कि तेरा भाई वापस आया Your है, brother has come back. तेरा भाई वापस आया है। And your father has killed a fattened calf. And he is back, so we are rejoicing." और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। Your father saw him safe and sound returning. तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया है, इसीलिए हम उत्सव मना रहे हैं। So we are celebrating. इसीलिए हम उत्सव मना रहे हैं। 28 verse. 28वां वचन। The older son he got angry and refused to go in that house. बड़े भाई को गुस्सा आया यह सुनकर और अंदर जाने से इनकार करने लगा। But his father came out and pleaded. He begged, "Please, my son, come in." परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा कि मेहरबानी करके मेरा बेटा अंदर आ जा। And this brother, he was angry. और यह भाई गुस्से में था। He started blaming. उसने दोष लगाना शुरू किया। He answered the father, उसने पिता को जवाब दिया, "Look, all the year I have been with you. कि देख इतने सालों से मैं तेरे साथ रहा हूँ, I have served you. मैंने तेरी सेवा की I है, have never disobeyed your commandment. मैंने कभी भी तेरी कोई आज्ञा नहीं टाली है। Yet you never gave me even young goat to celebrate with my friends." तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया है मेरे मित्रों के साथ उत्सव मनाने के लिए। I never saw you happy. I was with you. You never saw me. I never saw you happy when I was with you. जब भी मैं तेरे साथ था तब मैंने कभी तुझे खुश नहीं देखा। You never celebrate. तूने कभी उत्सव नहीं You मनाया। never gave a young goat to have for celebration. और कभी भी मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया उत्सव मनाने के लिए। But this son who have returned, परंतु जब तेरा यह पुत्र जो वापस आया, who have wasted all the money that you gave him, जिसने तेरी संपत्ति उड़ा दी है जो तूने उसे दी थी, he has spent out after those street women. उसने अपनी संपत्ति औरतों के पीछे उड़ा दी है। But you killed a young fat cow just for him. तो भी उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। Verse 31. 31वां वचन। And the father said, और पिता ने कहा, "Son, you are with me forever. पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, And all what is mine, all is yours." और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है। 32. 32वां वचन। The father, this good father is giving a teaching. ये अच्छा पिता शिक्षण दे रहा है। You, my son, तू है मेरे बेटे, you should be happy because your brother is returned. तुझे तो आनंद करना चाहिए था क्योंकि तेरा भाई वापस आया है। You should have to greet him. तुझे उसे सलाम देनी चाहिए। You should have to kiss your brother. तुझे अपने भाई को चुंबन करना चाहिए था। But it was necessary to feast and to rejoice because your brother was dead. परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था। He was lost and now he has been found. वह खो गया था, अब मिल गया है। This brother he had one brother. यह भाई भूल गया था कि उसका एक भाई भी था। And after returning back, he would be happy to see
this son, this brother. और उसके वापस आने के बाद उसे देखकर इस भाई को खुश होना चाहिए था। Your father said you have to be happy seeing your brother back. यहाँ पिता ने बड़े बेटे से कहा कि तेरे भाई को वापस आते हुए देखकर तुझे खुश होना He चाहिए था। got grace. उसके ऊपर अनुग्रह हुआ He decided to return back. और उसने वापस आने का निर्णय लिया। You have to correct yourself and listening this good news, you should be humble and come back, come in. तुझे अपने आप को सही कर कर यह सुसमाचार सुनकर नम्र होकर अंदर आना चाहिए था। You should be happy seeing your brother is returned. तेरा भाई वापस आया है यह सुनकर तुझे खुश होना चाहिए था। People, when they read this story, लोग जब यह कहानी पढ़ते हैं this what is the character? तो यहाँ ये चरित्र कौन से है? Brother to brother, one father. दो भाई एक पिता। Who is the small brother? Who is the big brother? छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है, Who is the father? और पिता कौन है? There are many revelation people are giving. बहुत सारे प्रकटीकरण इसके बारे में लोग देते Who हैं। can be these two brother? ये दो भाई कौन हो सकते हैं? What Bible teaches? बाइबल क्या सिखाता है? What Jesus meant when he said this story? यीशु ने जब यह कहानी कही तो यीशु क्या कहना चाहते थे? Yes, father is God. हाँ, पिता वह परमेश्वर है। And who is the prodigal son? और वह फिजूल खर्ची बेटा कौन है? And who is the brother who had been keeping commandment and was staying in the house? और जो आज्ञा पालन कर रहा था और पिता के घर में रह रहा था वह बेटा कौन है? People, when they preach this gospel, लोग जब यह सुसमाचार सुनाते हैं they say Christian people, they don't accept another brother who can return back to Lord. तो वो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग दूसरे भाई जो प्रभु में आते हैं उनका स्वीकार नहीं करते हैं। Christian brother don't like when someone repent and come to the Lord. ईसाई भाइयों को जब कोई प्रायश्चित करके प्रभु के पास आए, परमेश्वर के पास आए तो पसंद नहीं आता है। They don't want any newcomer or new believer join in the church. वे नहीं चाहते कि कोई नया आदमी, कोई नया विश्वासी कलीसिया में जुड़े। When sinner is given a post, जब कोई पापी को पदवी दी जाती है, people don't like such a fellow in the good position. तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी पदवी में देखना लोगों को पसंद नहीं होता। So people say this is a Christian people. तो लोग These two brothers are Christian people. तो लोग ऐसा सिखाते हैं कि ये दो भाई जो है दोनों ईसाई है, क्रिश्चियन है। One being in the church, एक कलीसिया में रहता है and another who came and returned and started believing. और दूसरा ऐसा है जो बाहर से आता है और विश्वास करना शुरू करता है। And the brother who is in the church, they don't love another brother who is returned. और जो कलीसिया में भाई है वह जो दूसरा भाई बाहर से आता है उसे प्रेम नहीं करता है। They don't praise God for a brother returning back. कोई भाई वापस आता है उसके लिए यह लोग कलीसिया के लोग परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते। They don't love any new one coming to the church. कोई नया व्यक्ति संगति में आए वह उनको अच्छा नहीं लगता। So this what the people teach. तो इस तरह से लोग सिखाते हैं। Another people they say दूसरे लोग इस तरह से सिखाते हैं। these two brother it indicate one angel and another man. ये दोनों भाई यह निर्देश करते हैं कि एक देवदूत है और दूसरा मनुष्य है। The angel who had been with the Lord, वह दूत जो प्रभु के साथ रहता था, and also God created Adam. और परमेश्वर ने आदम को भी बनाया। God created angels, परमेश्वर ने देवदूत बनाए and God created man. और परमेश्वर ने मनुष्य भी बनाया। And for man, God sent Jesus Christ. और मनुष्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। And the angels are not happy और देवदूतों को अच्छा नहीं लगा, because for them no Lord or no sacrifice was made. क्योंकि देवदूतों के लिए कोई बलिदान नहीं दिया गया। There were many angels who were with the Lord. बहुत सारे देवदूत थे जो प्रभु के साथ थे And for them there was no celebration. और उनके लिए कोई उत्सव नहीं था। But for human being when he returned back, लेकिन मनुष्य जाति के लिए जब वह वापस आता है and they say we are sinner, और जब मनुष्य आकर कहता है कि हम पापी हैं, and for them there is rejoice in heaven. तो उनके लिए स्वर्ग में आनंद होता है। But for Satan and for devil and for the devil angels,
लेकिन शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए, दूतों के लिए there is no any plan. कोई योजना नहीं है। So people say the angel they are with the Lord, तो लोग कहते हैं कि देवदूत प्रभु के साथ है, and there are human beings, they are been called to come back to the Lord. और मनुष्य जाति को बुलाया गया है कि वे प्रभु के पास वापस आए। For them, Father, the Creator, never rejoiced and never had celebration for the angels. स्वर्ग दूतों के लिए पिता ने कभी भी उत्सव नहीं बनाया और Never rejoiced. कभी आनंद नहीं किया। But when the children of Adam, they are returning, लेकिन आदम के संतान जब वापस आते, they were lost in the world. वे दुनिया में खो गए थे, They have disobeyed the commandment. उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था। Bible says the angel, they keep commandment of God. बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, But men are called sinner. लेकिन मनुष्य को पापी कहा गया है। They have lost the authority that God has given them. और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था वह मनुष्यों ने गवा दिया है। And when they return and they repent, there is rejoice in heaven. और जब ऐसे मनुष्य वापस आते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो स्वर्ग में आनंद होता है। For angels, God has never said, let there be a feast. स्वर्ग दूतों के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आइए उत्सव मनाए। But for human beings, there is going to be great celebration. लेकिन मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। In Luke 15 chapter verse 10, लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, likewise I say to you, when a sinner repent, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक पापी मन फिराए, there is joy in the presence of the angels of God. तो परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। In heaven, angels rejoice. स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। Matthew 18 and verse 10. मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 10वां वचन, Jesus said, if you make fall the believer, small little believer, यीशु ने कहा यदि तुम छोटे विश्वासी को यदि ठोकर खिलाते हो, there will be punishment by God. God will punish you. God will punish you. तो परमेश्वर तुम्हें सजा देगा। But you do not look down on, see that you do not look down on any of these little ones. Okay, 11 verse in Hindi. हिंदी में 11वां वचन, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। So God warned that these who are new coming to the Lord, oh my disciple, take care of them. तो परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे चेले, ये जो नए लोग आते हैं तुम उनका ध्यान रखो, Do not make them fall. उनको ठोकर मत खिलाओ। For I tell you, certainly they are having angels. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत है, They are in heaven, जो स्वर्ग में है, who always see the face of your Father. जो तुम्हारे पिता का मुंह सदा देखते हैं। There is joy in the midst of angel when someone return. जब कोई वापस आता है तो स्वर्ग दूतों के बीच में आनंद होता And है। if someone fall, the angel, they also are angry with the people. और यदि कोई गिरता है तो स्वर्ग दूतों को भी लोगों के साथ गुस्सा आता है। Luke 18 and verse 10. 15 and verse 10. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन, Likewise I say to you, इसी तरह मैं तुमसे कहता हूं there is joy in the presence of the angels. कि स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। When? कब? When a sinner repent. जब कोई पापी मन फिराता है। Angel rejoice when someone come back to the Lord. जब कोई प्रभु के पास वापस आता है तो स्वर्गदूत आनंद करते हैं। So the elder brother cannot be angels. तो बड़ा भाई जो है वह स्वर्गदूत नहीं हो सकता, Because they rejoice when anyone come back to the Lord. क्योंकि जब कोई भी प्रभु के पास वापस आता है तब स्वर्गदूत आनंद करते हैं। Father is God पिता परमेश्वर है and elder brother is Jesus. और यहाँ जो बड़ा भाई है वह यीशु है। Many people say बहुत लोग कहते हैं this elder brother is Jesus Christ. कि यह बड़ा भाई यीशु मसीह है। And
And for Jesus Christ, there was no celebration. और यीशु मसीह के लिए कोई उत्सव नहीं था। He had been obedient from the beginning. वह पहले से आज्ञा पालन करता था। For in Luke 15:29, the elder brother is saying, क्योंकि लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 29वें वचन में बड़ा भाई कह रहा है, he's saying, Father, वह कह रहा है कि पिता, behold, for many years, so many years, I have been faithful, I have served you. कि मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरे साथ विश्वास में रहा हूँ, Never did I disobey a commandment of your. और कभी भी तेरी कोई आज्ञा नहीं टाली। So who can be this who had been obedient? तो यह आज्ञा पालन करने वाला बेटा कौन हो सकता He है? might be Jesus Christ. वह यीशु मसीह हो सकता For है, Jesus Christ never disobeyed Father. क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। Three verses I am going to share. 3 वचन मैं बताऊंगा। That says Jesus Christ has never disobeyed. यह वचन कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। Philippians 2 and verse 8. फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन। Jesus Christ appeared in human form यीशु मसीह मनुष्य देह में प्रकट हुआ and still further he humbled himself by submitting even to the death. और उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली। Jesus was ready even if Father give him command to die. यदि पिता यीशु को मरने की आज्ञा दे तो उसके लिए भी यीशु तैयार था। He showed his obedience. यीशु ने अपना आज्ञा पालन दिखाया। He showed I am obey to any commandment. यीशु ने दिखाया कि कोई भी आज्ञा का पालन मैं Jesus करूंगा। humbled himself and become obedient to death even. यीशु ने अपने आप को इतना नम्र किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। Father gave him commandment, die. पिता ने उसे आज्ञा दी कि मर, And Jesus Christ even obeyed that commandment and died. और वह आज्ञा का पालन भी यीशु मसीह ने किया और मरा। So Jesus Christ obeyed until death. तो मृत्यु तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। John 8 and verse 46. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 46वां वचन। Jesus said to the Jew people, who among you can prove me guilty of sin? यीशु ने यहूदी लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? None of you can show what I have done anything wrong. और यदि मैं सच बोलता हूँ No तो one can show my wrongs. कोई भी मेरी गलती नहीं दिखा सकता। No one can say I did any wrong. मैंने कुछ गलत किया ऐसा कोई नहीं साबित कर So सकता। Jesus claimed, तो यीशु ने दावा किया no one is there to prove me I did any wrong. कि मैंने कुछ गलत किया है ऐसा साबित करने के लिए कोई भी नहीं है। So Jesus Christ has been obedient person. तो यीशु मसीह आज्ञाकारी व्यक्ति था। John 8 and verse 29. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 29वां वचन। Jesus said, my Father has sent me यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे भेजा है and my Father has never let me alone. और मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। For I do always those things that has pleased him. क्योंकि उसे वह जिससे खुश होता है वह बातें मैं हमेशा करता हूँ। And the same elder brother is speaking like that. वही बात बड़ा भाई भी बोल रहा है I have never disobeyed you, my Father. कि हे मेरे पिता, मैंने तेरी कोई बात को कभी टाली नहीं। I have never went against you. मैं तेरे विरोध में कभी नहीं गया। And Jesus was also obedient person. और यीशु भी आज्ञाकारी व्यक्ति था। In Romans 8:29 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 29वां वचन कहता है, for God already foreknown, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से जान लिया था। God knew it from before. परमेश्वर ने पहले से वह जाना था। So God has already chosen those people from the beginning. इसलिए परमेश्वर ने वह लोगों को पहले से ठहराया भी था। He had decided that all those who are going to join Jesus Christ, उसने निर्णय लिया था कि जितने भी लोग
यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे they should all this son, तो वे भी यह बेटे के जैसे बने, so that Jesus be the firstborn among the brothers. इसीलिए कि यीशु सब भाइयों में पहलोठा ठहरे। So Jesus was called an elder brother to those who are returning back. तो जो लोग वापस आते हैं उनके लिए यीशु बड़ा भाई कहा गया था। Already God knew from before. परमेश्वर पहले से जानता था, And so he has already decided for all those who are returning back. इसीलिए जितने भी लोग वापस आने वाले हैं उसके लिए उसने पहले से ही निर्णय लिया था। But we see in Luke 15:25 लेकिन हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 25वां the वचन, nature of elder brother. He didn't came in by saying when he heard that son returning. बड़े भाई का स्वभाव हम देखते हैं जब उसने सुना कि छोटा भाई वापस आया है तो वह घर में नहीं आया। Verse 25. 25वां वचन, Meanwhile, the elder son परंतु was out in the field. When he returned back to house, परंतु उसका बड़ा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, he came near the house. वह घर के निकट पहुंचा, He heard music and dancing. तब उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। Verse 26. 26वां वचन, He was not pleased when he heard my brother has returned. जब उसने सुना कि मेरा भाई वापस आया है तो वह खुश नहीं हुआ। He called the servants and said, उसने दास को बुलाया और पूछा, what is this thing happening in? यह क्या हो रहा है अंदर? And listening that your brother is saved home, और उसने सुना कि तेरा भाई सुरक्षित वापस आया है and so party is going on. और इसीलिए उत्सव हो रहा है। 27 verse. 27वां वचन, Your brother is back तेरा भाई वापस आया है and your father is celebrating and having feast और तेरा पिता उत्सव मना रहा है और दावत दे रहा है, because your brother is saved. He's not been killed or hurt. क्योंकि तेरा भाई मरा नहीं है या घायल नहीं हुआ है, वह सुरक्षित है। Verse 28. 28वां वचन, But this elder brother got angry लेकिन यह बड़े भाई को क्रोध आया and he didn't came into the house Or- celebrating at the place where they were celebrating. He didn't came in there. और जहाँ लोग उत्सव मना रहे थे वहां उसने भीतर जाना नहीं चाहा। But see, a father saying to this elder brother, परंतु उसके पिता ने बड़े बेटे को कहा, we see he's begging to this elder brother. पिता अपने बड़े बेटे से उसे मना रहा है, उससे भीख मांगता है। Why you are sitting outside? Come and enjoy. तू बाहर क्यों बैठा है, आ और उत्सव मना। So this is not the nature of Jesus Christ. तो यह यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, For Jesus said in Matthew 9:13, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 13वां वचन, you know in the Old Testament it was written तुम जानते हो कि पुराने नियम में यह लिखा गया था what God desire. कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। God desire is mercy, परमेश्वर की इच्छा दया है, not sacrifice. बलिदान नहीं। What you learned from this God's word. परमेश्वर के यह वचन से तुम क्या सीखते हो? So Jesus said, तो यीशु ने कहा, I came to call the righteous, not the righteous, but I came to call the sinner. क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। So Jesus was happy when someone returning back. तो जब कोई वापस आता है तो यीशु खुश था। And also angel rejoice when someone repent. और जब कोई मन फिराता है तो स्वर्गदूत भी आनंद करते हैं। So who is this elder brother now? तो अब यह बड़ा बेटा कौन हो सकता Because है? Jesus Christ is happy and he came out to bring the lost people. Jesus is happy because he came to bring the lost people to save them. क्योंकि यीशु मसीह खुश है क्योंकि वह जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए आया। Amen. आमेन। Fourth revelation. चौथी ज्ञान की बात, Who is this elder brother? यह बड़ा भाई कौन है? The elder brother are Jewish people. यह बड़े भाई यहूदी लोग हैं। And the prodigal son is the sinner, Gentile people. और जो फिजूल खर्ची बेटा है वह विदेशी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। Paul says, पौलुस कहता है Philippians 3:5, फिलिपी का पत्र 3 अध्याय 5वां वचन, I was circumcised when I was 8 years old.
जब मैं 8वें दिन का था तब मेरा खतना हुआ I am an Israelite by race. और इज़राइल के वंश से हूँ। So now this Paul is feeling proud for he is a Jewish person. अब यह पौलुस अभिमान कर रहा है क्योंकि वह यहूदी व्यक्ति है। I am a Hebrew person. मैं इब्रानी व्यक्ति हूँ। I am a child of Hebrew. मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। And to the law, I am a Pharisee. और व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो मैं फारसी हूँ। Verse 6 he said, 6ठे वचन में पौलुस ने कहा, I proved myself I am blameless. मैंने अपने आप के बारे में साबित किया है कि मैं निर्दोष हूँ। And verse 9 he says, और 9वें वचन में पौलुस कहता है, I am not seeking to prove myself by my obedience. और मेरे आज्ञा पालन से मैं अपने आप की साबिती देना नहीं चाहता। I have kept the law. मैंने नियम का पालन किया है And I did as the scripture says. और जैसे धर्म उपदेश कहता है वैसे मैंने किया है। I have keeping the law from my childhood. और मेरे बचपन से मैंने व्यवस्था को माना है। So Jewish people, there are few people who from the birth they keep on obedient, being obedient. तो ऐसे कुछ यहूदी लोग होते हैं जो अपने बचपन से ही व्यवस्था का पालन करते आए हैं, करते रहते हैं। So we see there are many people who obey God. They are Jew people. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और वह यहूदी लोग हैं Who strictly obey the commandment. जो गंभीरता से आज्ञाओं का पालन करते हैं। Roman 11 verse 14. रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 4th verse. रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 4था वचन। About Elijah, God says, एलिया के बारे में परमेश्वर कहता है, God say, I am proud for I have already kept 7,000 people for me. परमेश्वर ने कहा कि मैं घमंड करता हूँ क्योंकि मैंने मेरे लिए 7,000 पुरुषों को रखा है। You don't think, Elijah, that after you who will serve me? एलिया तू ऐसा मत सोच कि तेरे बाद मेरी सेवा में कौन रहेगा। What God answered? परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? I have reserved to myself 7,000 men कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा who है, have never bowed the knee to the image of Baal. जिन्होंने कभी बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। So God says there are people who have been keeping commandment. तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग हैं जो आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। Matthew 19:20. मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 20वां There वचन। was a young fellow who came to Jesus Christ एक जवान व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया and he said, और उसने कहा, I have kept all this commandment that you are saying, Jesus Christ. यीशु मसीह जो भी आज्ञाएं तू कह रहा है सारी आज्ञाओं का पालन मैं करता आया I हूँ। have kept it from my youth time. मेरी जवानी से मैं ये सब मानता आया हूँ। What lack yet in me? तो अब मुझ में क्या घटी है? So there are Jewish people who are obeying the commandment of God. तो ऐसे यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। Matthew 9:13. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 13वां वचन। When Jesus said, I came not to call the righteous people, जब यीशु ने कहा कि मैं धर्मी लोगों को बुलाने नहीं आया, so he proved that there are people who are righteous people. तो यीशु ने साबित किया कि ऐसे भी लोग हैं जो धर्मी है And I didn't came to call them. और उनको बुलाने के लिए मैं नहीं आया। Who are already obeying God, I didn't came to call them. जो पहले से ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनको बुलाने में नहीं आया। So there are few Jew people who keep the commandment of God. तो ऐसे कुछ यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। Paul say those who disobey God commandment, Paul call them sinner. पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वह पापी है। Galatians 2 and verse 15. गलाती का पत्र 2 अध्याय 15वां वचन। Among Jews there were people who disobey God. यहूदी लोगों में ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे And they were called as Gentile. और उन्हें अन्य जाति के बराबर गिना गया। Verse 15. 15वां वचन। Paul said, Peter, you know we are Jew by nature. पौलुस कहता है कि पतरस तू जानता है कि हम जो जन्म के यहूदी है And we are not
sinner और हम of the Gentile. और पापी अन्य जातियों में से नहीं। Those who are without law, for them they call them sinner. जो लोगों के पास व्यवस्था का पुस्तक नहीं है उनको यहूदी लोग पापी कहते Who हैं। don't obey God commandment, they are called sinner. जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते उनको पापी कहा जाता है। Bible teaches that we people who have never commandment, बाइबल सिखाता है कि हम लोग जिनके पास कभी कोई आज्ञाएं नहीं we थी, have never heard any commandment, हमने कोई आज्ञा कभी सुनी नहीं we थी, have, to us, God never promised a word, परमेश्वर ने हमें कोई वचन नहीं दिया था, and so we were not called God's people. इसीलिए हमें परमेश्वर के लोग नहीं कहा गया था। But Jesus Christ, praise to Him. लेकिन यीशु मसीह ने For Jesus Christ, praise to God. लेकिन यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का महिमा हो। Ephesians 2:12 says, एफएससी का पत्र 2:12 कहता है, remember that you were at that time far from Christ. याद रखो तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे You were shut out from the citizen of Israel. और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए You were थे stranger to the covenant found by on God's promise. और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे You were in the world without hope. और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। You were without God living. तुम ईश्वर रहित जी रहे थे। We know Jesus Christ once he scolded the Pharisee. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार फारसी लोगों को डांटा। In Luke 11 verse 52. लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय 52वां वचन। Because these people, they hate the people who disobey God's word. क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वह लोगों को यह फारसी लोग नफरत करते हैं। Woe to you, God said, Jesus said. यीशु ने कहा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, For you, servants of the student of the law, तुम व्यवस्थापकों पर, woe to you. तुम पर हाय। You have taken away the key of the door of knowledge. You have not entered and you are not pleased when someone enter. कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। You have been in hindrance. Those who are trying to go in. जो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए तुम रुकावट बन गए। Just think, if the elder brother would be outside of the house केवल सोचो कि यदि बड़ा भाई घर के बाहर होता and father would be in the house और पिता यदि घर के अंदर होता and the small brother is returning back empty handed, और यदि छोटा भाई खाली हाथ वापस आ रहा होता what would be the situation? तो फिर परिस्थिति कैसी होती? The elder brother would say, तो बड़ा भाई कहता, "Shh, go back." वापस चला जा। But it was grace, it was a wonderful thing that father was outside. लेकिन ये बहुत अद्भुत बात थी और अनुग्रह का समय था कि पिता खुद बाहर था। And so he welcomed the son. इसीलिए पिता ने छोटे बेटे का स्वागत किया। Jesus is scolding this Pharisee. यीशु ये फारसी लोगों को डांट रहा है Who are the students of the law? जो व्यवस्था के विद्यार्थी है। And Jesus said, woe to you because you are hindrance to those who want to enter. और यीशु ने कहा कि तुम पर हाय क्योंकि जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए तुम रुकावट हो। We see the people who need no grace, no God grace, हम देखते हैं ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं because already they are obeying God commandment. क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। But we see they are jealous when someone come to the Lord. लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई प्रभु के पास आता है तो यह आज्ञा पालन करने वाले लोगों को ईर्ष्या होती है। The Jew people never like that they shout in the name of Jehovah. यहूदी लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई अन्य जाति वाला यहोवा के नाम में पुकारे या चिल्लाए। And they take their Bible and start preaching the word of God. और इसीलिए वह अपना बाइबल लेकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगते हैं। They don't like the people
who preach the word from their scripture. उनके पवित्र शास्त्र में से दूसरे लोग प्रचार करें, यह बात यहूदी लोगों को पसंद नहीं। Romans 11:11 says, रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 11वां वचन कहता है, therefore I say, इसीलिए मैं कहता हूँ, have they stumbled in which a way that they should fall? क्या उन्होंने इसीलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? Let it not be so. कदापि नहीं, Instead, by their offense, परंतु उनके गिरने के कारण, because they are jealous, क्योंकि उनको ईर्ष्या है, salvation is with the Gentile. इसीलिए अन्य जातियों के उद्धार मिला। Salvation is with the Gentile now. अब उद्धार अन्य जातियों के पास आया, But rather, through their fall, लेकिन उनके गिरने के कारण से they fall. The Jew fall. Here it says. यहाँ पर लिखा है, परंतु उनके गिरने के कारण The Jew were angry. उनको जलन हुई, गुस्सा हुआ, They were jealous. उनको जलन हुई। We see they have lost the love of God. हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का प्रेम छोड़ दिया है। They didn't like when people repenting and coming to the Lord. कोई प्रायश्चित करके प्रभु के पास आए, ऐसा यह लोगों को पसंद नहीं, Because they want that what we preach, you believe. क्योंकि यहूदी लोग चाहते हैं कि हम जो प्रचार करें वह तुम मानो। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The Gentile, they came to the Lord. यह अन्य जाति के लोग प्रभु के पास आ गए। Mark 15:10 says, मरकुस का सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन कहता है, with Jesus Christ, people were angry. And so they delivered Jesus Christ to the chief priest. यीशु मसीह के लिए लोगों को जलन होती थी, इसीलिए उसे महायाजक के हाथ में पकड़वाया। The Pharisee, the law keeper, फारसी लोग जो व्यवस्था का पालन करते थे, they hate Jesus Christ. वे यीशु मसीह से नफरत करते And थे, they said, Jesus Christ, you are not keeping Sabbath. और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह तू विश्राम दिन का पालन नहीं करता है। But they saw Jesus Christ doing wonders and the sign. लेकिन उन्होंने देखा यीशु मसीह अद्भुत काम और चिन्ह कर रहा है। We are keeping God commandment, but there is no miracle. हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। And Jesus being a sinner, और यीशु पापी होकर भी, breaking the law, नियम तोड़ने के बाद भी, and he is doing wonderful things. फिर भी वह अद्भुत काम कर रहा है। So we see Jewish people nature, they are jealous. तो हम देखते हैं यहूदी लोगों के स्वभाव में जलन है, ईर्ष्या है। They hate Jesus Christ. वे यीशु मसीह से नफरत करते हैं। When Jesus said this story, जब यीशु ने यह कहानी कही, when the lost brother returned, when he returned, जब खोया हुआ भाई वापस आया, and he said, I've sinned, और उसने कहा कि मैंने पाप किया है, but that brother was not happy. The elder brother was not happy. लेकिन यह सुनकर वह बड़ा भाई खुश नहीं हुआ। Luke 15:29. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 29वां वचन। Still, Jew people are not happy when someone, a Gentile, are being saved. आज भी जब कोई अन्य जाति के लोग उद्धार पाते हैं, तो यहूदी लोग को अच्छा नहीं लगता। And there is very hard a Jew people converting to Christianity today. और आज यहूदी में से कोई मसीहत में आने वाले यहूदी बहुत ही कम है। Here the elder brother said, यहाँ पर बड़े भाई ने कहा, see Luke 19:29, 15:29. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 29वां वचन। Father, पिता, see, for many years I have served you. कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, Neither sin at any time your commandment. और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली है, Yet you have never gave me kid, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, or I might make merry with my friends. कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। But father said, लेकिन पिता ने कहा, son, you are with me, कि बेटा तू मेरे साथ है, and all what is I have is yours. और मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। 32 verse. 32वां वचन। Father said, पिता ने कहा, you could be
You should rejoice. कि तुझे For your brother was dead and he is alive. कि तुझे आनंद करना चाहिए था क्योंकि तेरा भाई मर गया था और अब जीवित हुआ है। So who is this jealous brother? तो यह जलन रखने वाला भाई कौन है? Who don't like that other people also they join in the covenant. जिसे पसंद नहीं कि दूसरे लोग भी वाचा में करार में आए। FSC 2:19. एफएससी का पत्र दूसरा अध्याय 19वां Just वचन। keep on listening. केवल सुनते रहो। Paul make clear. पौलुस स्पष्ट करता है, Now therefore you Gentile, you are now no more strangers. इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। You are not stranger and foreigners, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, but you are now fellows citizen परंतु with the अब saints. परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी हो गए हो। So there are already saints. Already there are saints. Already there are saints. तो पहले से ही संत थे And we are joined with the saints. और वह संतों के साथ हम जुड़े हुए हैं And so we are in the family of God. और इसीलिए अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए। Verse 21. 21वां वचन। In Jesus Christ, the whole building, whole people who are gathering, they are fitted together and growing into a holy temple in the Lord. यीशु मसीह में सारी रचना एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर बन जाती है। We are all gathered, united. हम सब जुड़े हुए हैं। We who were stranger, हम जो पहले मुसाफिर थे we are joined with the saint. अब हम संतों के साथ जुड़े हुए We are हैं। united with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ एक हुए हैं। So there are now Jew and there are Gentile. तो अब कोई यहूदी नहीं, कोई विदेशी। There are Jew and Gentile together. तो अब यहूदी और अन्य जाति के लोग एक साथ हुए हैं And they are growing in the house of the Lord. और अब वह प्रभु के घर में बढ़ रहे हैं। Verse 22. 22वां वचन। And they are union in Jesus Christ. Union with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ एक हुए हैं। We Jew and you Gentile both are having Christ teaching. हम यहूदी लोग और तुम अन्य जाति के लोग, हम दोनों के पास मसीह का शिक्षण है। So Paul is welcoming Gentile. तो पौलुस विदेशी लोगों का स्वागत कर रहा है You also being built up together. We are built up together. कि हम सब मिलकर एक साथ बनते जा रहे हैं And we are dwelling for God through the Spirit. और आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होते जा रहे Verse हैं। 19. 19वां वचन। Now therefore you are no more stranger and foreigners. इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, You are united with those who are obeying God's commandment. जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ तुम जुड़ गए हो। Verse 18. 18वां वचन। For it is through him that we, the Jew and the Gentile, united in the one spirit. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। We both, हम दोनों Jew and Gentile, यहूदी और विदेशी लोग in one spirit we are now approaching to the Father. एक ही आत्मा में हम पिता के पास पहुंचते हैं। So the people who are obedient, तो जो लोग आज्ञा पालन करते हैं, already they are with the Lord. जो वह लोग प्रभु के साथ है ही, They are pleased, they are happy seeing the Gentile. वह लोग विदेशी लोगों को देखकर खुश होते हैं। And so Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, we also made ourselves humble in Christ, हमने भी अपने आप को मसीह में नम्र किया and we are welcoming those who are without God. और जो लोग परमेश्वर के बिना के लोग थे उनका हम अब स्वागत करते हैं। So we believe the elder son that represent obedient Jew person. तो बड़ा भाई जो प्रस्तुत करता है वह यहूदी लोग है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। For Jew there were promises. क्योंकि यहूदी लोगों के लिए वचन दिए गए थे। Verse 12, FSC 2 and 12. एफएससी का पत्र दूसरा अध्याय 12वां वचन। Remember that at that time you people were separated from Christ. याद रखो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। So Paul is saying, we not you. तो पौलुस कहता है कि हम नहीं, तुम। You were separated from Christ. तुम मसीह से अलग थे। Christ is from us. मसीहा तो हमारी ओर से आया है And he is Israel, from Israel. और मसीहा इजराइल का है। Remember you were Gentile. और याद रखो कि तुम अन्य जाति के लोग You थे। were separated from Christ. मसीहा से तुम अलग किए हुए लोग Being थे alien from the covenant of Israel.
और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए and stranger to the testament. और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। Paul say you were hopeless. पौलुस कहता है कि तुम आशाहीन थे, You were having no promise. तुम्हारे पास कोई वचन नहीं था, You were having no God. तुम्हारे पास कोई परमेश्वर नहीं था, You were just hopeless in the world. जगत में तुम आशाहीन थे। Now you are joined with us. अब तुम हमारे साथ जुड़े हुए हो। Through Jesus Christ calling, you are added with us. यीशु मसीह की बुलाहट के बाद तुम हमारे साथ जुड़ गए हो। Verse 13. 13वां वचन। But now, through your union with Jesus Christ, you are united, agreed with Jesus Christ. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, Now you are agreeing with Jesus Christ. अब तुम मसीह यीशु के साथ सहमत होते हो। So, who you were far, इसीलिए जो तुम पहले दूर थे, by shedding Jesus' blood, यीशु का लहू बहाने के द्वारा, you are brought near to those who are obedient. तो जो लोग आज्ञा पालन करते थे उनके पास तुम्हें भी लाया गया है। Christ broke the enmity and united us. मसीह ने दुश्मनी तोड़ी और हम दोनों का, यहूदियों का अन्य जाति और अन्य जाति का मिलन करवाया। Verse 14. 14वां वचन। Christ broke the enmity both and united we, Jew and Gentile, together. क्योंकि वही मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और उसने दुश्मनी तोड़ डाली। He had made understood the elder brother. उसने बड़े भाई को समझाया You should be pleased seeing this brother. कि तुझे इस भाई को देखकर खुश होना So चाहिए। there are few Jew people, they also unite and agree with Jesus Christ. तो ऐसे कुछ यहूदी लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और एक होते हैं। And so we are now having peace with you. और इसीलिए अब आपके साथ हमारी भी शांति है, For he is our peace, क्योंकि वह हमारी शांति है who had made both one जिसने दोनों को एक कर लिया and has broken down the middle wall of partition between us, you and us. और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। Verse 15. 15वां वचन। He had brought to an end the Jewish rule. और उसने यहूदियों की व्यवस्था के नियमों को रोक दिया, बंद कर दिया। Those rules told them what they ought to do. वह नियम उन्हें जो करना चाहिए था वह बताते थे। In this way, इस तरह से God stopped the two group of people from being enemies. परमेश्वर ने दो अलग अलग समुदाय के लोगों को दुश्मन बनने से रोका। The elder were Jew जो बड़े भाई थे वह यहूदी and थे, Gentile were the younger son. और जो विदेशी अन्य जाति है वह छोटा बेटा है। And when they repent, any Gentile repent, और जब कोई भी विदेशी मन फिराए, because who are not with God, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ नहीं है, without God living, परमेश्वर के बिना जो लोग जी रहे and हैं, when they return and call upon Lord Jesus Christ, और जब वह वापस आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे, and they return back to Jewish people, और वे लोग यदि यहूदी लोगों के पास वापस they आए accept Jewish law, और यहूदी लोगों के कानून को वे लोग अपनाए, they are added with the saint. तब अन्य जाति के लोगों को संतों के साथ जोड़ा जाता है। So the Gentile also have to be humble and adjust with the Jewish Bible. तो अन्य जाति के विदेशी लोगों को भी नम्र होकर यहूदी लोगों के बाइबल के साथ सहमत होना चाहिए। Amen. आमेन। And they are also accepted in the house of God. और उन्हें भी परमेश्वर के घर में स्वीकार किया जाता है। Amen. आमेन। So this is what we believe. तो यह हम विश्वास करते हैं। That there are Jew people who are obedient to God. और यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। But many they hate Gentile and say they are sinner. लेकिन बहुत यहूदी लोग ऐसे हैं जो विदेशी लोगों को नफरत करते हैं और कहते हैं वह पापी है। But who love Jesus Christ, लेकिन जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते they हैं, will love Jesus Christ other people also. वे लोग यीशु मसीह के दूसरे लोगों को भी प्रेम करेंगे। Jesus said, I have other flock also, other sheep also. They are not in this fold. यीशु ने कहा कि मेरे दूसरे भेड़े भी हैं
जो इस भेड़शाला के नहीं है। I want to bring them and you have to adjust them and adjust them also. मैं उनको लाना चाहता हूँ और तुम्हें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For because of Him who we were without God, have received God. क्योंकि जो हम पहले परमेश्वर रहित थे, आज हमने परमेश्वर को पाया है यीशु मसीह की वजह We से। have received Father. हमने पिता को पाया है। We are united in one. हम एक घर में एक हुए हैं। We have now loving our elder brother also, अब हम हमारे बड़े भाई से भी प्रेम करते हैं, who already were having the law of God. जिनके पास पहले से ही परमेश्वर का नियम था। We were Gentile. हम विदेशी थे। Through Jesus Christ blood, यीशु मसीह के लहू के द्वारा we are united with Israel people. हम इज़राइल के लोगों के साथ जोड़े गए हैं, एक किए गए Thank you हैं। Jesus Christ, for we were before without promise. यीशु मसीह आपका धन्यवाद, क्योंकि पहले हम वचन रहित थे, But through you, through your blood, we are now with your covenant. लेकिन आपके द्वारा, आपके लहू के द्वारा हम आपके करार में आ गए And we have been forgiven. और हमें माफी मिली है। And now we can claim the promises of your word. और अब हम आपके वचन का दावा कर सकते हैं। We can read your Bible. हम आपका बाइबल पढ़ सकते We हैं। can read Jewish book. हम यहूदी किताब पढ़ सकते हैं। Now we can also say we are of God. अब हम भी कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, For there was prophecy क्योंकि भविष्य वचन था। who were without God, जो परमेश्वर रहित थे, to whom God said, you are not my people. जिनको परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लोग नहीं। But now your word is fulfilled. लेकिन अब आपका वचन पूरा होता है Whom you said you are not my people, you are going to call my people. कि जिनको तुमने कहा था तुम मेरे लोग नहीं है, उन्हें परमेश्वर आप कहोगे कि तुम मेरी प्रजा हो। And so we are your now. इसीलिए अब हम आपके हैं। Through Christ's blood, मसीह के लहू के द्वारा we can claim all Bible verses. बाइबल के सारे वचनों का दावा हम कर सकते We हैं। are back in your house. आपके घर में हम वापस आए हैं। Now we are the real Jew. अब हम सच्चे यहूदी हैं। We confess it. हम यह कबूल करते हैं। Now we are with you. अब हम आपके साथ हैं। And we will obey as Jesus Christ you have said. और यीशु मसीह जैसा आपने कहा है वैसे हम मानेंगे। As you have promised. जैसे आपने वचन दिया है, You have planned. जैसे आपकी योजना है, And that was your desire. और वह आपकी इच्छा थी, And from beginning you have chosen us. और शुरुआत से आपने हमें पसंद किया, So that we to be obedient son. इसीलिए कि हम भी आपके आज्ञा पालन करने वाले बेटे बने। And Jesus Christ you are our elder brother. और यीशु मसीह आप हमारे पहलोठे बड़े भाई हो। And through your blood we are now have peace. और आपके लहू के वजह से अब हमें शांति मिली है। We receive your word. हम आपके वचन का स्वीकार करते Thank हैं। you for coming for us हमारे लिए आने के लिए आपका धन्यवाद, and calling us और हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, and welcoming in your family. और आपके परिवार में हमें जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। We are God family. हम परमेश्वर का परिवार है। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. की इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की be सहभागिता with you आपके साथ and रहे, with all who are watching or join with the church. और जो लोग देख रहे हैं कलीसिया में जुड़ते सबके साथ बनी रहे। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम।